নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাজনিশা ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক এতিয়া লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সমগ্ৰ দেশজুৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলিছিল কিন্তু সমগ্ৰ প্ৰতিবাদ নেওচি এতিয়া গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক কিন্তু এতিয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ পৰা সমগ্ৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে কি সুবিধা আছে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ যিমান ওয়াকফৰ সম্পত্তি আছে সকলো মুছলমান জনতাৰ হিতৰ বাবে ব্যৱহৃত হ'ব আৰু মুছলমানৰ অধিকাৰ হিন্দুৱে যাতে কাঢ়ি আনিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হৈছে তাৰ বাবে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সদনৰ মজিয়াত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো ওয়াকফ বিলক লৈ দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবে আহি গ'ল ডাঙৰ খবৰ মাজনিশা লোকসভাত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক ওয়াকফৰ 11টাকৈ ডাঙৰ পইণ্ট এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম মুছলমানৰ কি সুবিধা হ'ব ওয়াকফ সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে মেজৰিটি মেম্বাৰ মুছলমান হ'ব ওয়াকফ বৰ্ডৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোক মুছলমানৰ হ'ব দুজন অমুছলমান থাকিব বৰ্ডত এই কথা ইতিমধ্যে এই আইনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ওয়াকফৰ সম্পত্তি চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব ওয়াকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি মুছলমানৰ হিতৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'ব এনে ধৰণৰ কেতবোৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে ওয়াকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি ব্যৱহাৰ হ'ব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবে আৰু ওয়াকফ বৰ্ডত স্বচ্ছতা অনাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ বাবে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক এতিয়া গৃহীত কৰা হৈছে লোকসভাত মুছলমানৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ কাঢ়িব নোৱাৰিব হিন্দুৱে মুছলমানৰ ওয়াকফ আইনৰ আওতাত নাহে কোনো অন্য ধৰ্মৰ লোক ওয়াকফৰ সম্পত্তিৰ উপাৰ্জিত ধন মুছলমানৰ কল্যাণ আৰু হিতৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু ইছলাম ধৰ্মৰে জড়িত সকলো সংস্থা উন্নীত কৰিব লাগিব আৰু অন্তিমটো পইণ্ট এই মুহূৰ্তত জনাইছো ওয়াকফৰ বহুতে সম্পত্তিক লৈ কৰা অবৈধ কাম বহু লোকে চলাই ৰাখিব বিচাৰে সেইবোৰ বন্ধ হ'ব মাজনিশা লোকসভাত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক আৰু এই ওয়াকফ বিধেয়কত মুছলমানৰ হিতৰ বাবে কি আছে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত পইণ্টছ আমি লৈ আহিছোঁ নিশা 2 বজাত লোকসভাত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কখনৰ সপক্ষত 288 গৰাকী সাংসদে ভোটদান কৰিলে বিপক্ষে 232 গৰাকীয়ে ভোটদান কৰিলে আৰু প্ৰায় 12 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময়জোৰা আলোচনাৰ অন্তত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক আৰু হাজাৰ প্ৰতিবাদ নেওচি লোকসভাত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ বিধেয়ক সমগ্ৰ দেশজুৰি মুছলমানসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বুধবাৰে বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে বিপক্ষে যুক্তি আগবঢ়াইছিল কিন্তু সকলো এতিয়া এক প্ৰকাৰ অসাৰ হৈ পৰিল উত্তাল পৰিৱেশৰ মাজেৰে মাজনিশা বিধেয়কখন গৃহীত হ'ল লোকসভাত আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোটি কোটি মুছলমান লোকলৈ এতিয়া অভয়বাণী দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে য'ত অমিত শাহে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৰে ভাল হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে এনেধৰণৰ কেতবোৰ মন্তব্য দিছে আৰু ভাষণ প্ৰসংগত মৰিগাঁৱৰ বিশাল মাটিৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সদনৰ মজিয়াত মৰিগাঁও জিলাৰ 134 একৰ ভূমি ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত আছে সেই কথাও উল্লেখ কৰিলে অমিত শাহে ভাষণত তথ্যসহ মৰিগাঁও জিলাৰ ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত থকা ভূমিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ এই ডাঙৰ ঘোষণাৰ পাছতে সম্প্ৰতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি যি প্ৰতিবাদ চলিছিল সেই দেশজুৰি ওয়াকফ বিলক লৈ দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানে যি প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই প্ৰতিবাদৰ অন্তত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজনিশা লোকসভাত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক আৰু এই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পাছতে 11টাকৈ মুছলমানসকলৰ বাবে ডাঙৰ পইণ্ট আহি পৰিছে এই 11টা পইণ্ট কি সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মুছলমানৰ বাবে ওয়াকফৰ জৰিয়তে কি সুবিধা হ'ব এই বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত কি সুবিধা থাকিব নম্বৰ 1 ওয়াকফ বৰ্ডত মেজৰিটি মেম্বাৰ মুছলমানৰ থাকিব তাৰ পৰিৱৰ্তে অমুছলমান বৰ্ডৰ ভিতৰত থাকিব মাত্ৰ দুজনহে সমান্তৰালকৈ ওয়াকফৰ সম্পত্তি চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব এই কথা ইতিমধ্যে এই আইনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে
আৰু ৱাকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি মুছলমানৰ হিতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ হিতৰ বাবে এতিয়া এই ৱাকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ৱাকফ বোৰ্ডত স্বচ্ছতা অনাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা চৰকাৰী পক্ষই হাতত লৈছে আৰু তাৰ বাবে এইখন বিধান লোকসভাত উত্থাপন কৰা হৈছে। মুছলমানৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ হিন্দুৱে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰিব, এই কথাও সুস্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু মুছলমানৰ ৱাকফ আইনৰ আওতাত নাহে কোনো অন্য ধৰ্মৰ লোক। আৰু ৱাকফ সম্পত্তিৰ উপাৰ্জিত ধন মুছলমানৰ কল্যাণ আৰু হিতৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি বাৰম্বাৰ এই আইনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ইছলাম ধৰ্মৰে জড়িত সকলো সংস্থা উন্নীত কৰিব লাগিব। আৰু সমান্তৰালকৈ এই আইনৰ অধীনত অন্য ধৰ্মৰ লোক এই আওতালৈ নাহে। আৰু ৱাকফৰ বহুতে সম্পত্তিক লৈ কৰা অবৈধ কাম বহু লোকে চলাই আছে, সেই ধৰণৰ কামসমূহ বন্ধ হ'ব। আৰু তাৰ পাছতেই এনেধৰণৰ কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। মন্তব্য আছে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত। মন্তব্য এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই লৈছোঁ। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा।
मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप
और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया। और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर